Good morning, students. Today we are going to discuss the statistical averages of random variable. Till now we have discussed two different concepts, that is probability density function and cumulative distribution function, to understand the concept of random variable and the distribution of probability in communication system. However, there are other parameters, statistical parameters, which can be used to understand the concept of communication system. These parameters are called statistical averages. So PDF and CDF gives some information about random variable. However, the interpretation of these random variables, these parameters are quite complex. So there are some other parameters or measures which give some more useful information about random variable, and they are simpler than compared to the PDF and CDF. And collectively these measures are called statistical averages. वन बाय वन देखते हैं क्या है statistical averages. The first one is a mean and average or expected value. मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है मीन और एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है. यहाँ पर भी हम सेम उसी कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं. बस एक चीज का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का टर्म्स अपीयर होगा, प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है. द मीन और एवरेज ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड by the summation of the values of random variable multiplied by or weighted by their probabilities. मैं स्टेटमेंट फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा. The mean or average of any random variable is expressed by the summation of the values of random variable, suppose that it is x, weighted by or multiplied by their probabilities. Generally, the mean value of a random variable is represented by mx, or it can be represented as ex, called expected value of random variable. So it is called mean value, average value, or expected value. Okay. So mean value of a discrete variable, let us take a random variable x having a values of x1, x2, x3, x2 up to xn. So the mean or average value represented mx can be given as, so mx will be x1 px1, x2 px2, x1 px1 plus x2 px2 plus x3 px3 plus xn pxn. So this equation actually represents the mean or average of the random variable capital X. So in short form, the given equation can be written as the mean or expected or average value of random variable is equal to summation from I equal to 1 to n xi into pxi, where xi is the possible outcome of that random variable capital X and pxi represent the probability of occurrence of that outcome. क्लियर ना. जैसे हमारे पास अगर एक कोई इवेंट था, एक्सपेरिमेंट था, जिसे हम डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास आउटकम आ रहा है 1 2 3 4 5 6. तो 1 की प्रोबेबिलिटी कुछ है, 2 की कुछ है, 3 की कुछ है. तो अगर हमसे पूछा जाए कि ऑन एन एवरेज मीन वैल्यू बताइए इस एक्सपेरिमेंट की, इस रैंडम वेरिएबल की, तो क्या होगी. तो x1 क्या हुआ, 1 आने, 1 is that event x1, and probability of occurrence of that one is px1. So x1 px1 plus x2 plus px2, x2 into px2 plus x3 into px3, and so on up to x6 px6. So this whole equation, this whole calculation actually represent the average value or mean value or expected value of a random variable. Now मीन वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, अभी तक तो हमने डिस्क्रीट की बात की. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जो नंबर ऑफ आउटकम्स है वो डिस्क्रीट नहीं होते हैं. नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस इन नेचर होते हैं. गिवन a finite time of interval, we have infinite number of possible outcomes. So in such type of experiment we are using continuous random variable. So for a continuous random variable, the mean value or expected value can be calculated as, in can be written as or can be calculated as this one. Here the summation is replaced by integration. आपके discrete random variable की जब mean value calculate कर रहे थे तो वहाँ पे summation था, या हमने integration से replace कर दिया है. आपका x वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी x present रहेगा. वहाँ पर आपका px था, probability of occurrence of that value. यहाँ पर probability of occurrence को हमने pdf से represent किया एकदम, क्योंकि हम continuous random variable को pdf से represent करते हैं. So formula to calculate the mean value of a continuous random variable can be stated as integration limit from minus infinite to plus infinite of x into pdf of x into
dx. So this one represent the expected value, average value और mean value of the continuous random variable. ठीक है, अब इसमें एक हम छोटा सा नोट देखेंगे, ये नोट इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाह रहा है अभी देखते हैं आगे. If a function gx transform random variable x into another random variable, then mean or average value of gx can be given as integration limit from minus infinite to plus infinite gx pdf of x into dx. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल y है, एक रैंडम वेरिएबल x है, तो y और x के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा. यानी y अगर x को किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाए, यानी x में कुछ ना कुछ हम ऐड करते हैं या कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या x किसी का फंक्शन होता है तो y को रिप्रेजेंट करेगा. सो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. तो दैट फंक्शन ऑफ x को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, gx कह रहे हैं. तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस केस में gx की मीन वैल्यू निकालिए, तो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, take the mean value of gx. If you're going to take the mean value of gx, we will get the formula integration from minus infinite plus gx pdf of x dx. नीचे वाले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाए. क्वेश्चन देख लेते हैं. The random variable z is the function of another random variable x in such a way that z is equal to cos x. फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन. The random variable z is the function of another random variable x in such a way that z is equal to cos x. यहाँ पर z दूसरा random variable है, x कोई दूसरा random variable है. cos of x is equal to z हो रहा है, तो यहाँ पर gx क्या है, cos of x है, जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया उसी को यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में समझिएगा. यहाँ पर gx यानी cos क्या कर रहा है, x को z में कन्वर्ट कर रहा है. इफ वी आर गोइंग टू टेक द कोसाइन ऑफ x, इट कन्वर्ट द रैंडम वेरिएबल x इनटू z. यही स्टेटमेंट है यहाँ पर. एंड द pdf of x is given, यहाँ पर pdf of x given है जिसको कह रहे हैं, and x is uniformly distributed in the interval of minus pi to pi. That is pdf of x can be written as 1 upon 2 pi for the range from minus pi to pi and 0 otherwise. Clear? So determine the mean value of z. The mean value of z यानी mean value of cos x की बात कर रहा है, mean value of gx की बात कर रहा है. तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, gx निकालने के लिए क्या करना होगा, we have to take the mean value of gx. So put the value here and you will get your answer. So in the given question, z is equal to cos x, gx will be the cos x. So take the mean value of gx is the integration limit from minus infinite to plus infinite gx pdf of x dx. gx की वैल्यू cos x पुट कर दीजिए. pdf of x क्या था, माइनस पाई टू पाई के लिए इसकी वैल्यू 1/2 पाई थी, बाकी सबके लिए 0 थी. दोनों वैल्यू यहाँ पुट करके आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर दीजिए, विल गेट द मीन वैल्यू ऑफ cos x और z और gx इज इक्वल टू 0. क्लियर है? ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये कुछ अलग क्वेश्चन था, नोट के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, इसको समझे रहिए. आगे चलते. मूवमेंट्स एंड वेरिएंस. मूवमेंट और वेरिएंस भी हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, क्या होता है फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है. यहाँ पे भी हम देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के सेंस में क्या कहना चाह रहा है. मूवमेंट्स मूवमेंट नथिंग बट जस्ट अ मीन. क्या डिफरेंस है देख लेते हैं. द nth मूवमेंट ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल x may be defined as the mean value of xn. अभी तक हम मूवमेंट मीन वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर रहे थे, उस रैंडम वेरिएबल x की कैलकुलेट कर रहे थे. अभी take the mean value of x raised to the power n. This is called the nth moment of random variable x. So take the mean value of x raised to the power n. Formula will be integration from minus infinite to plus x raised to the power n pdf of x dx. Just replace x by x raised to the power n. So for n is equal to 1, it is called first moment. If we are going to put the value n equal to 1, it represent the mean. मीन का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा. मीन का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिट प्लस x pdf of x dx. ये क्या रिप्रेजेंट कराती है, मीन रिप्रेजेंट कराती है. मीन क्या होता है, मीन फर्स्ट मूवमेंट होता है. पुट द वैल्यू n इक्वल टू 2, वी विल गेट सेकंड मूवमेंट. सेकंड मूवमेंट क्या होगा, मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू, दैट इज मीन स्क्वायर वैल्यू. मीन स्क्वायर वैल्यू हम कब कैलकुलेट करते हैं, if we are going to calculate the power of the given signal. The mean of square value is nothing but just the second movement of any random variable. So here replace, in the given formula, replace x by x square. So the formula will be minus infinite plus infinite x square pdf of x. This represents the mean square value. Next parameter, the central movement. मूवमेंट अभी हमने डिस्कस किया था, nth मूवमेंट डिस्कस किया था, फर्स्ट मूवमेंट डिस्कस किया, सेकंड मूवमेंट डिस्कस किया. सेंट्रल मूवमेंट भी कुछ होता है, देख लेते हैं. द सेंट्रल मूवमेंट इज गिवन बाय द मूवमेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन. मूवमेंट को आप मीन से लीजिए, मूवमेंट मींस मीन. मूवमेंट इज नथिंग बट जस्ट द मीन. तो सेंट्रल मूवमेंट इज गिवन बाय द
movement of the difference between the random variable x and mean and its mean। यानी आप क्या करिए, आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल था, ठीक है, उस रैंडम वेरिएबल का पहले आप मीन निकाल लीजिए, इसको हम फर्स्ट मूवमेंट भी कहते हैं। आपने मीन निकाल लिया, अब उस रैंडम वेरिएबल और उस मीन को आप क्या करिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, उनके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, डिफरेंशिएट नहीं सॉरी, उनके बीच में आपने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, यानी x माइनस एम एक्स कैलकुलेट कर लिया। अभी x माइनस एम एक्स एक फंक्शन हो गया। नाउ टेक द nth मूवमेंट ऑफ दैट डिफरेंस, इट इज कॉल्ड द सेंट्रल मूवमेंट। देयरफॉर the nth central movement can be given as x is that random variable, mx is the mean of that random variable, so take the expected value or mean value of x minus mx raised to the power n. It will provide you the nth central movement of the random variable capital X. So just replace the x by x minus mx raised to the power n in the given formula. You will get the central movement, nth central movement of random variable x. Now put the value n equal to 1. What you will get if you are going to put the value of n? Your answer will be 0. The first central movement of any random variable is equal to 0. Clear? If you are going to put this n equal to 2, what will happen? Just put the value. If you are going to put the value of n equal to 2, then second central movement is called variance. So variance can be represented as expected value of x minus mx square. Put that value into the formula, so it will be minus integration from minus infinite plus infinite x minus mx square udf of x dx. Now expand that bracket. So after expansion, it will become x square mx square minus twice of x into mx. So expected or average value of x square ex square minus twice of mx ex plus mx स्क्वायर। किसी मीन वैल्यू का आप अगर बार बार मीन वैल्यू लेंगे तो उससे मीन लेंगे तो उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब हमने एक्स स्क्वायर का मीन लिया तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। एम एक्स स्क्वायर का मीन लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम एक्स स्क्वायर ही आता है, इसलिए वहां पे एम एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू एम एक्स में एम एक्स मीन, मीन का फिर मीन लेने का कोई मतलब नहीं, एम एक्स इज बिहेव लाइक अ कांस्टेंट। एक्स का मीन लेंगे यहाँ पर, तो ट्वाइस ऑफ एम एक्स इंटू ई एक्स। ई एक्स क्या होगा आपका, एम एक्स ही होता है, तो फॉर्मूला चेंज हो गया आपका, expected value or mean value of x square minus twice of mx square plus mx square. So finally the variance will be equal to the mean square value minus square of mean value. ये फॉर्मूला बहुत नोन फॉर्मूला है, पढ़े भी हैं। तो variance is equal to mean square value minus square of mean value. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब आप सेकंड सेंट्रल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं उससे हम वेरिएंस कहते हैं, और वेरिएंस इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू। If we are going to take the square root of variance, it is known as standard deviation. तीन पैरामीटर अभी हमने देखा, एक हमारे पास मूवमेंट था जिसमें हमने फर्स्ट मूवमेंट पढ़ा, सेकंड मूवमेंट पढ़ा, सेंट्रल मूवमेंट पढ़ा, इसके बाद फिर हमने देखा मीन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू, फिर हमने देखा यहाँ पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ योर वेरिएंस, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। The square root of variance known as the standard deviation of a random variable x. It can be represented at sigma x. Clear? तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, इन सारे पैरामीटर की हेल्प से भी हम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी गिवन कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से और चीजें क्लियर होंगी। हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है, the probability density function of a continuous random variable is of the form of this, half of e raised to the power minus mod x for the range from minus infinite to plus infinite. Determine the mean of that random variable. So it is a continuous random variable. If you want to calculate the mean of that random variable, we know the formula that from integration from minus infinite to plus x pdf of x into dx. So put the value of pdf in this equation. The value of the pdf is half of e raised to the power minus mod of x dx. Solve the given integration by changing the appropriate limit according to the modulus, and we will get our answer 0. So mean of that random variable is equal to 0. Second question देखते हैं। A random variable x has the uniform distribution. Uniform distribution का मतलब ये के पास एक रेंज है 0 to 2 pi और 0 to 2 pi में उसकी रेंज है 1/2 pi, अदरवाइज 0। यानी हमारे पास एक पीडीएफ गिवन है, पीडीएफ क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है पूरे के पूरे इंटरवल में, इसीलिए इस पीडीएफ को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। तो पीडीएफ इज इक्वल टू 1/2 pi फॉर 0 to 2 pi 0 अदरवाइज। क्या कैलकुलेट करना है हमें, मीन भी कैलकुलेट करना है, मीन स्क्वायर वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट
करना है। तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। मीन का फॉर्मूला हमें पता है, पुट द वैल्यू ऑफ पीडीएफ इनटू द फॉर्मूला ऑफ मीन एंड यू विल गेट योर आंसर। सो आंसर इज इक्वल टू पाई। सेकंड, मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी, मीन स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता है हमें, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस हो जाता है, पीडीएफ की वैल्यू पुट करिए, इंटीग्रेट करके सॉल्व करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू। वेरिएंस क्या था, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू हमें कितनी मिली है, 4/3 पाई स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ मीन कितना हो जाएगा, मीन था पाई, स्क्वायर ऑफ मीन कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर। पुट द वैल्यू, so it will be 4/3 pi square minus pi square is equal to pi square by 3. This will represent the variance. Now take the square root of that, it will provide you the standard deviation. Now next topic is a uniform distribution. तो अभी तक मैंने आपको ऊपर जो बताया वही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक पूरे रेंज में कांस्टेंट रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे के पूरे एरिया में यूनिफॉर्म है। यहाँ पे देखिए लिखा है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज PDF is equal to 0 if x is less than m minus a by 2 and x is greater than m plus a by 2, and it is equal to 1 by a for m minus a by 2 to m plus a by 2. डायग्राम ज्यादा क्लियर हो जाएगा, डायग्राम देखते हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फंक्शन गिवन है, रेक्टेंगुलर फंक्शन का जो मिडिल पॉइंट है वो m है, तो लेफ्ट साइड में कितनी डिस्टेंस होगी m minus a by 2, राइट साइड में कितनी डिस्टेंस होगी m plus a by 2, टोटल विड्थ कितनी है, a है। अभी क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली कितना है, 1 by a है। ये रेंज कह रहा है इस पूरे की पूरी रेंज में, यानी m minus a by 2 to m plus a by 2, इसकी पीडीएफ की वैल्यू कितनी है, 1 by a है। जब इस रेंज से बाहर हम जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें गिवन रेंज में पीडीएफ की वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर ये 1 by a ही क्यों उसने एम्पलीट्यूड लिया, इसलिए लिया क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है पीडीएफ की, द एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व इज इक्वल टू यूनिटी। अब एक बात बताओ, आपके सामने एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है a, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ दे रखी है a, विड्थ कितनी होनी चाहिए, a इंटू विड्थ इज इक्वल टू 1, तो विड्थ इज इक्वल टू 1 by a, इसीलिए विड्थ कितनी आ रही है, 1 by a, क्योंकि एरिया तो पीडीएफ का क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए उसने हाइट को क्या लिखा है, 1 by a। सो a इंटू 1 by a इज इक्वल टू 1, क्योंकि द एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, दैट्स व्हाई इट्स बिकम 1 by a। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल if a random variable has a probability density function is constant probability density function for throughout the range, then such type of distribution is called uniform distribution, or it can be represented by this diagram, or it can be represented by this equation. So the value of PDF is same for all possible values of random, thus this distribution is known as uniform distribution. चलिए इस पे फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Prove that the mean and variance of a random variable x having a uniform distribution in the interval a and b are this one and this one। यानी कह रहे हैं आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है, उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस रेंज में a से b में, आपको प्रूव करना है उसकी मीन की वैल्यू ये आएगी, उसके वेरिएंस की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, हमने फटाफट डायग्राम बना लिया। राइट साइड में देखेंगे a और b के बीच में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सॉर्ट रेक्टेंगुलर फंक्शन ही बनने वाला है। a और b के बीच की जो वैल्यू होगी उसे मीन वैल्यू कहेंगे आप। उसका जो टोटल एरिया है वो a है, तो हाइट कितनी होगी, 1 by a होगी। A uniform distribution in the interval a comma b is sketched in the figure where a is equal to b minus a. A is the lower limit, b is the higher limit, so total a will be b minus a, and that height 1 by a is equal to 1 upon b minus a. So by using that formula, mean is equal to integration from minus infinite to plus infinite x of x dx. X, put the value of pdf here, pdf is equal to 1 by a for the range of a to b, solve it, you will get your answer, so it will be a plus b divided by 2। तो फर्स्ट डेरिवेशन आपका आ गया। इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ एनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, you will get the answer a plus b divided by 2। a is the lower limit, b is the higher limit, just add them and divide by 2। why? because this is the uniform distribution, तो नॉर्मल एवरेज भी तो ऐसे ही निकलेगा, दो वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने फॉर्मूले को यूज किया है और हमें क्या मिल गया, a plus b divided by 2। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। नहीं, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है, कैलकुलेट द मीन स्क्वायर वैल्यू और उसमें से माइनस कर दीजिए स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू को। तो मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, रिप्लेस दैट x by x square, put the value here, solve it, you will get the mean square value is equal to a square plus b square plus ab upon 3। now calculate the variance, mean square value minus square of mean value, mean square value a square plus b square plus ab divided by 3, square of mean value, mean कितनी वैल्यू आ रही है, a plus b by 2 आ रहा था, take that square of that value, solve the given values and you will get the variance equal to a minus b square divided by 12।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ देते हैं क्या होता है, इस पे ये क्वेश्चन बड़ा प्रोमिनेंट है। यहाँ पे मैंने इंटरवल ए और बी रखा है, हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वहाँ ए और बी की जगह 2 और 5 लिखा हो, वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो, तो आपको पता चल गया जो आपका मीन होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई होता है, जो वेरियंस होता है वो क्या होता है ए माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। आपके सामने डेरिवेशन हो गया है, ठीक है। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कल हम डिस्कस करेंगे, आज हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टैटिस्टिकल एवरेज मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके नोट्स को भी मैं कम्युनिकेट करता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे।